नमस्कार दर्शक मित्रों, गुड इवनिंग टू यू इन इंडिया, गुड मॉर्निंग टू यू in US, and good afternoon or good night wherever you are according to the time. Friends, we are once again here with a genius who is father of telecommunication revolution in India, who has big contribution in putting a focus on the water crisis that is looming large in the country. What is happening to Bengaluru, the IT city of India, you are all aware. So many contributions, 10 years remaining as an advisor to Prime Minister of a level of a cabinet minister is not a joke. And he has done it successfully, done it leaving his indelible mark behind. Here is Sam Pitroda, our favorite and my privileged senior. Thank you. Always kind to me, and therefore, once more with us. Sir, today we have social media before us. I would wish that social media जो है, दर्शक मित्रों, सोशल मीडिया का प्रभाव यह है कि वो दोधारी तलवार जैसा है। एक माइक्रो ब्लेड अगर सर्जन के हाथ में दिया जाए तो किसी की सर्जरी करके उसका जान बचाएगा। वही माइक्रो ब्लेड अगर खिस्सा का तो यानी पिक पॉकेटर के पास चला जाए तो किसी की जेब काट के उसके पैसे चुरा लेगा। तकलीफ माइक्रोब्लेड में नहीं है, तकलीफ टेक्नोलॉजी में नहीं है, तकलीफ वो टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है उसमें है। और आजकल सरकारें भी आज जो जिस तरह से भारत सरकार की एक के बाद अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो जिस तरह से इनकी परतें खुल रही है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज किस तरह से किया जाए, वो जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, सरकारी हो जाता है, तब शायद उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन अब डिक्लेयर हो गया है। 4 जून को भारत का भविष्य तय होकर बाहर आ जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन आने वाले समय में भारत पे राज करेगा, किस दिशा में भारत को ले जाएगा, ये सब हम 4 जून को जानेंगे। अप्रैल से शुरू होता है, जून तक 2 महीने भारत में 7 चरणों में ये इलेक्शन होगा। तो ये समय है जब हम कुछ देखा, हमने पाकिस्तान में जेल में रहे हुए इमरान खान ने अपने आवाज से मैसेज भेजकर सबको ताज्जुब कर दिया। जेल में से उन्होंने एड्रेस किया, ये एक ताज्जुबी की बात थी। बाइडेन मेक्सिको से दीवार फांक अंदर आते हुए लोगों को स्वागत करते हैं, ऐसा एक फेक वीडियो, और बाइडेन का हॉस्पिटलाइजेशन का फेक वीडियो ये सर्कुलेशन में आया। ये तो शुरुआत है। अब ये फेक वीडियो की फैक्ट्री से क्या क्या चीजें निकलेगी हम नहीं जानते। आवाज किसी का होगा, ये किसी का होगा। एक 60 सेकंड का सोरा करके सॉफ्टवेयर निकला है जो आपको किसी के भी आवाज में ओरिजिनल वीडियो बना के देगा। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, और यही सोशल मीडिया के संदर्भ में है। इलेक्शन ये समय का जो है वो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है। भारत का भाग्य क्या होगा और भारत आने वाले समय में कैसे उभरेगा, दुनिया के सामने कैसे रहेगा, इसका अगर हमें ये देखना है तो हमें ये इलेक्शन के रिजल्ट देखने होंगे।
ये इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में भी सर ईवीएम का मिसयूज उसके उसके सामने बहुत बड़ी शक आपने भी कहा है कि ईवीएम कैन बी मॉनिटर, but the election commission doesn't see that, and obviously the election commission, which is subordinate in a subordinate role to the government, you can't expect much out of them. Election commissioners, two of them, appointed a day on which the elections are announced. What did they know about the conditions in various parts or various states of the country? But that happens. They say that there is no possibility of doing any hanky-panky with the EVM, and anybody who is talking about is talking nonsense. Now, these are the issues, sir, that what will be the possibilities of social media use during this election. सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Beyond that, sir, just I'm completing. Beyond that, sir, artificial intelligence, and third, I have always said, sir, in a minute I'll tell you that when we used to send team to Pakistan, we used to lose always despite the best of the batting line. And we used to say jokingly that we have 11 players, they have 13. 11 regular and 2 umpires. So now it is the NBA plus EVMs. So it is not really the tie-up of NDA versus others, where there is very little to talk about that. It is NDA EVM tie-up. How far, what havoc it can play, because perhaps it is said this will be last democratic election in India if things go the way they plan them to go. What is your opinion, sir? सबसे पहले फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कोई जीनियस नहीं हूं। मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं जिसने करीबन 60 साल तक टेलीकॉम आईटी में काम किया है, अमेरिका में और इंडिया में। और भारत देश ने मुझे बहुत ढेर सा प्यार और मौका दिया है कि जिससे मैं राजीव गांधी के साथ टेलीकॉम और आईटी में कुछ काम कर सका। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मैं प्रयत्न करूंगा एक एक चीजों का जवाब देने के बारे में। शायद जवाब बड़ा लंबा होगा, सो बेयर विथ मी फॉर अ व्हाइल। कोई बात नहीं सर, टेक योर ओन टाइम। थैंक यू। सबसे पहले सोशल मीडिया। सोशल मीडिया 2023 में और 2024 में बहुत अलग है कंपेयर टू 2019 इलेक्शंस एंड 2014 इलेक्शंस। अभी सोशल मीडिया इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया और खाली फेसबुक और एक दो नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप को भी लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और एक्स, टिकटॉक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं अभी जिस पे आपकी विचारधारा फैला सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, सोशल मीडिया पे झूठ बहुत चलता है, क्योंकि झूठ और पर्सनल अटैक्स हैव बिकम एम्पलीफायर। इन ए सेंस, जब भी कोई झूठ मिला तो उसको सोशल मीडिया बिल्कुल एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि उससे उनको
खुद को फायदा होता है, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, उनकी क्लिक्स बढ़ जाती है, और जिससे उनको एडवर्टाइज रेवेन्यू ज्यादा मिलते हैं. So social media has become an amplifier for lies. And lies by people who are hidden. They are not true, genuine human beings. It could be a machine answering. It could be a group of people who are acting like a machine to answer. Or it could be completely automated with AI kind of machine intelligence. So जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई न्यूज देखते हैं, वो आपको खुद समझना है कि ये कहां से आता है, कौन कहता है, क्यों कहता है, किसके बारे में कहता है, आज ही क्यों कहता है, कल क्यों नहीं कहा. सो आपको आपका सत्य खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे झूठ फैलाए जाते हैं. अगर आप उसमें फंस गए तो आप सत्य को पहचान नहीं सकेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं कल कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक दोस्त ने हमें भेजा कि किसी ने बड़ा डिस्क्रिप्शन आर्टिकल लिखा था कि सैम पिट्रोडा और राजीव गांधी के जमाने में टेलीकॉम और आईटी का रेवोल्यूशन हुआ. तो उसके जवाब में किसी ने लिखा कि सैम पिट्रोडा को आईटी और टेलीकॉम का क्या पता, वो तो पढ़े ही नहीं है. अब किसी ने लिख दिया वैसा, वो आ गया इंटरनेट पे, वो किसी ने पढ़ा होगा, तो नेचुरली किसी को ऐसा ही लगा होगा कि सच है. अब जिसने वो लिखा उसे हम नहीं पहचान सकते, उन्हें हम ढूंढ भी नहीं सकते. सो ऐसे लोग जानबूझ के झूठ फैलाते हैं. उन्हें पता है कि वह किसी को अटैक कर रहे हैं, किसी को बुरा बताना चाहते हैं, किसी की बात में दखल डालना चाहते हैं. सोशल मीडिया पे ये बहुत चलता है. सो सबसे बड़ी बात एक यह है कि आपको आपका सत्य ढूंढना है. अब जैसे एआई इस वक्त आ गई है, जिससे उसका उपयोग इस इलेक्शन में ज्यादा होगा, तो यही आप एग्जाम्पल लें तो कोई ऐसी भी वीडियो बना सकता है जिसमें सैम पिट्रोडा खुद कहेंगे कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी हूं ही नहीं, मुझे आईटी से क्या संबंध. अब वो तो वायरल हो जाएगा कहीं कहीं, तो कुछ लोग ऐसा भी समझेंगे कि ये तो बात बहुत सच है, सैम पिट्रोडा खुद बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेचारों को क्या पता कि ये एआई जनरेटेड इमेज है. अभी जो इंडिया में चल रहा है इलेक्शन के टाइम में, तो हम मानते हैं इस वक्त बहुत झूठ फैलेगा, पर्सनल अटैक्स होंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाएगा, गालियां दी जाएगी इन ए सिस्टमेटिक सोफिस्टिकेटेड वे, और ओपोनेंट को नीचा बताया जाएगा. अगर आप इस सब चीज में फंस गए तो आपका भी टाइम बर्बाद होगा, आपको भी 50 झूठ आएंगे, उसमें से आपको 5 सत्य निकालने होंगे. तो ऐसे वक्त हमारी सबसे विनती यही है कि आप फंडामेंटल बातों पे ध्यान दीजिए कि मुख्य चीज क्या है. छोटी छोटी बातों पे
और इसने उसको अटैक किया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, में मत पड़िए। लेकिन सोचिए कि देश को अभी किसकी जरूरत है? सत्य की जरूरत है और झूठ की जरूरत है। देश को अभी हिंदुत्व की जरूरत है कि मानवता की जरूरत है? देश को अभी डेमोक्रेसी की जरूरत है और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की जरूरत है? देश में भय फैलाना है या सिक्योरिटी फैलानी है? देश में हेट प्रमोट करना है या प्रेम प्रमोट करना है? ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए और आप देखिए कि किसका कैरेक्टर कैसा है। कौन हमेशा झूठ बोलता है, कौन हमेशा सच बोलता है, कौन झूठी प्रॉमिसें देता है और बातें करता है और कभी कुछ डिलीवर नहीं करता, और दूसरों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें एआई कुछ भी करे, सोशल मीडिया कुछ भी करे, आपको आपका मन बनाना है, आपको आपका विचार बनाना है। अगर आपके विचार में धर्म इतनी बड़ी चीज है कि आप लोगों में झगड़ा देख सकते हैं, मारफूट देख सकते हैं, जिससे अशांति फैलेगी, जिससे नौकरियां नहीं बढ़ेगी, धंधा आपका नहीं चलेगा, तो आप उस तरफ वोट करिए। क्योंकि जैसे जैसे पीस डिस्टर्ब होगी वैसे वैसे उसकी इंपैक्ट इकोनॉमी पे बहुत पड़ेगी। अगर आपको शांति से धंधा करना है, नौकरी करनी है, काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नेबर के साथ प्रेम से रहना है, तो आपको मानवता पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि धर्म एक पर्सनल चीज है। धर्म को घर में रखिए, आप श्योर बाहर जाइए, पूजा करिए, लेकिन सब धर्म का आदर कीजिए। सब लोगों को अपना अपना धर्म जीने का हक है, और मेक श्योर दैट एवरीबडी इज इक्वल एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट people from other caste, other language, other social fabric, culture. हमारे वहां ओबीसी, दलित, tribals and minorities make up a very large part of our population. इन सबको रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी देनी है और सबको प्रेम से आगे ले जाना है। इसके बारे में झूठ फैलाया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारा सोशल मीडिया पे आपको कहा जाएगा, लेकिन सत्य बड़ा सिंपल है। हमारी दृष्टि से सत्य हमेशा जीतेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, सत्य की जीत होगी और होगी। भारत डाइवर्सिटी के बिना नहीं आगे बढ़ सकता। भारत सब धर्म को समान माने तभी सच्चा भारत की प्रगति होगी। ये भारत सबके लिए है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा है, we have to make sure that as outlined in our constitution, we build a system
which provides justice, equality, liberty, freedom, fraternity. इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और मीडिया अभी ऐसा एक साइडेड हो गया है कि ऑपोजिशन कुछ भी कहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बताता। गवर्नमेंट कुछ भी कहे उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। अब मैं तो कभी कभी देखता हूं, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता, लेकिन जब भी देखो इट इज ओनली अबाउट प्राइम मिनिस्टर। वो देश के लिए अच्छा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कैसा चाहिए? जो सत्य बोले, जो लोगों से और प्रेस से रेगुलर बात करे, जो सादा हो, सीधा हो, लोगों को भड़काए नहीं, ऑपोजिशन पे अटैक ना करे, सब धर्म को रिस्पेक्ट करे और सबको साथ लेके चले और सबको पूछे, सबकी सलाह ले। हमें प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं चाहिए जो एरोगेंट हो और समझे हमें सब पता है, हम ही सब करते हैं, सब हमारी वजह से भी चलता है और सबकी क्रेडिट हम ही लेंगे। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और लोग उसका कभी विरोध नहीं करते कि अगर किसी ने विरोध किया तो उनके पीछे लगा देंगे ईडी, इनकम टैक्स और व्हाटएवर। वो भी अच्छा नहीं है ना कि लोगों पे झूठ बोल के, कानून का दुरुपयोग करके अटैक करना, ये कोई स्टेबल डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। हमने बहुत दफा बताया है कि हमें चिंता है कि हमारी डेमोक्रेसी डेंजर में है। हम मानते हैं ये। क्यों मानते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने देखे हैं जजमेंट कोर्ट के, हमने देखे हैं ईडी रेड्स, क्वेश्चनिंग ऑफ people, harassment by income tax office, all kinds of requirements for this form and that form and all that, unnecessary court cases. So लगता है कि institutions are under pressure. Two, हमारे बहुत सारे मित्र एनजीओ चलाते हैं, बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड पीपल। वो हमें बताते हैं कि वी आर अंडर प्रेशर, our funding is blocked, we are harassed, and we are not allowed to function. तो जब जब सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी को आप फंक्शन नहीं करने देते, तब public has to pay ultimately. Third, media is totally controlled. There is very little civilized conversation that I see. Questions people ask are twisted. Answers you give can be retwisted. And you can clearly see that the agenda is really to undermine opposition, whosoever it is, whatever it is. And there's very little respect for different point of view. Anchor person will change the tone, will become angry, will not give you space, interfere when you are talking, or twist what you are saying. And this has become a norm. And people think it is perfectly acceptable.
सो हमें इस इलेक्शन के बारे में बहुत बहुत चिंता है, क्योंकि ये इलेक्शन हाईजैक हो जाएगा। हमें ईवीएम के बारे में भी चिंता है। हम मानते हैं कि ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड इन मेनी डिफरेंट वेज। इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रांग है इसके बारे में, लेकिन आई डोंट बाय दैट। So unless and until we have free and fair elections, results of this election are going to be questionable. जी सर। दर्शक मित्रों, पित्रोड़ा साहब की बात से एक बात बहुत स्पष्ट होती है, अगर लोकशाही को चलाना है तो जो सरकार है वो, जैसे आप आपकी गाड़ी चलाते हैं उसमें इंजन होता है, सरकार इंजन है। आपने चाबी घुमाई, इंजन चालू हुआ, गाड़ी चालू हुई। अगर वो नहीं चालू हुई तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाता, आपको शायद डिले हो जाएगी, आप वो मीटिंग चूक जाएगी, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होना है। मगर गाड़ी जब 120 किलोमीटर की गति से जा रही है, उसी समय अगर ब्रेक फेल हो गई तो फैटल होगा। और आज जो भारत में हो रहा है वो विपक्ष को मिटा के इस लोकशाही के व्हीकल की, लोकशाही की गाड़ी की ब्रेक फेल की जा रही है। और वो इस शाम पित्रोड़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये इलेक्शन हाईजैक भी हो सकता है, इलेक्शन में ईवीएम का दुरुपयोग भी हो सकता है, ईवीएम में और भी चीजें डाल सकते हैं। और आपका इलेक्शन, जो लास्ट सेंटेंस उन्होंने यूज किया, फ्री एंड फेयर, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से और अपने खुद के बलबूते पे आजादी से हम अपना वोट दे, वो जब तक नहीं होता तब तक लोकशाही का मृत्यु घंट बजना निश्चित है। ये चेतावनी हमारे पित्रोड़ा साहब आपको दे रहे हैं, जिसके साथ मैं भी सहमत हूँ कि ये बात जो कही है उन्होंने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। उनका पहले भी कहना था कि आप ईवीएम यूज करते हो, एक सीधी सी बात है कि आप अगर किसी को वोट देते हैं तो वो वोट उसको ही दिया गया है, उसका खुद को वेरिफिकेशन करने का अधिकार होना चाहिए। आपके सामने वो घटना घटनी चाहिए जो बैलेट पेपर से होती है। और दर्शक मित्रों, आज तक कोई देश बैलेट पेपर छोड़ के, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी देश है, यहाँ भी मतों की गिनती 1-1.5 दिन 2 दिन तक चलती है, फिर भी इन्होंने ईवीएम को नहीं अपनाया, क्योंकि आप किसको मत देते हो आपको पता नहीं चलता, और आपको इसकी वजह से आप करते हैं वो समझ में नहीं आता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें और एक डाल दिया है। स्लोवाकिया में इलेक्शन हुआ और स्लोवाकिया का चुनाव नेताओं के फर्जी ऑडियो से प्रभावित हुआ। हाँ, जैसे मैं साहब ने बोला, जैसे कि आप इनका ही वीडियो बना के रख सकते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ वो खुद कह रहे हो कि अभी तक तो मेरी भूल हो गई, ये तो सही मायने में तो बहुत भारत का जो प्रगति है बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, मगर क्या करे, हमारी मजबूरी थी, अब नहीं बोल सकते थे। एक सर्टिफिकेट इस तरह का अगर साहब पित्रोड़ा साहब के नाम पे आ जाए तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। ये भक्त लोगों की आएगा नहीं, और आता है तो उसको मानना नहीं, मगर ये हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, ऐसी भी वीडियो बना सकते हैं इलेक्शन के वक्त कि पाकिस्तान की बॉर्डर पे पाकिस्तान ने अटैक किया, न्यूक्लियर बम तैयार हो रहा है। बताया ना सर, वो कुछ भी कह सकते हैं ना। बाइडेन मैक्सिको बॉर्डर पे स्वागत कर रहे हैं, जो दीवार कूद के आ रहे हैं इनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब झूठ।
सब फर्जी है। इसीलिए इस इलेक्शन में और हर इलेक्शन में अब ध्यान देना है बेसिक चीजों पे, और नहीं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये किया, उसने ये किया। बेसिक चीज क्या है? डेमोक्रेसी, ट्रूथ, ट्रस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, पीस, जस्टिस, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एनजीओज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान उसी पे देना है। और ये रास्ता बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है जब आप धर्म में फंस जाते हो, कंफ्यूजन है जब आप मानवता का मतलब नहीं समझते, कंफ्यूजन है जब आप देख नहीं सकते कि डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है। और ये सब लोग झूठ बोलते हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसमें से कुछ नहीं किया, अब दूसरी सब प्रॉमिस देते हैं, और सब वक्त दूसरे लोगों को बदनाम करने में ही डालते हैं। मैं तो देखता हूं जब जब लीडर्स बोलते हैं वो एक दूसरे के बदनामी में भी पड़े हैं। ऐसे देश नहीं चलता। हमने भी काम किया है गवर्नमेंट में, मैं कह रहा हूं हमें कभी याद नहीं कि किसी के बारे में बुरा कहा हो। वो सरकार का काम नहीं है, वो लीडरशिप का काम नहीं है। आप लोगों को बहका रहे हैं, डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपको लोगों को समझाना है कि देश का भविष्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलने में ही है। देश का भविष्य हमारी डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, लिफ्टिंग पुअर, मेकिंग श्योर दैट इनकम इक्वालिटी इज एनहांस, उसी में है। अभी तो इनकम इक्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि हमें बताया गया, आई डोंट नो द फैक्ट्स, बट आई हैव बीन टोल्ड कि 20 टॉप rich people in India have more wealth than 50 crore. ये कैसे चल सकता है? ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जिसके पास पैसा है दे विल हैव वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इन द नेम ऑफ शो ऑफ। ऑल रिच विल कम टुगेदर। जो अभी अभी देश के एक अग्रणी उद्योगपति ने किया, अपने बेटे के शादी के पहले प्री वेडिंग का नाम देकर, और बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला के इतना बड़ा शो किया जैसे जिसको आप माना न जाए। सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक और भी, यहाँ 20% लोगों के पास 80% पैसा है। नहीं, 20% नहीं, 20 80 लोग, नॉट 20%, यस 20 लोग। जी 20 लोग के पास 50 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। तो सही है सर। अगर आप अगर उसमें बाकी के लोग जोड़ देंगे तो भी बाकी के 10% के पास 10%, 90, 80% है। बिल्कुल बिल्कुल सच तो है, यहाँ सच। जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब तरीके से हुआ है। सर, एक छोटा सा प्रश्न था, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इससे, प्लीज। कि ये 18 साल का वय मर्यादा बनाया गया है जो वोटिंग के लिए, करीब 12-13 साल से बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हो गया है, उसकी एजुकेशन की सत्यानाश हो गई है। अभी एक रिपोर्ट आया था ईसर का, इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया था, 9वां या 10वें स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड की बुक में से पढ़ नहीं सकता। ये हाल यहाँ एजुकेशन के है सर। तो ये 18 साल का वोटिंग एज जो हुआ, उसके बारे में क्या कमेंट्स है?
देखिए, हमारा देश यंग लोगों का देश है। दुनिया भर में पॉपुलेशन इज एजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमारे देश में पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड यंग। 18 साल तक आप में सेंस ना आए तो वो जवाबदारी पेरेंट्स की, सरकार की और अपने एजुकेशन की है। 18 साल are really the early days of your understanding community, family, systems. And education must give you basic skills to read, write, comprehend, to count, understand science, and also understand civil society, government, private sector. So politics में जो समझ चाहिए 18 साल के लोगों की, वो एजुकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 16, 17, 15 साल के बच्चों को सिखाया जाए कि सरकार कैसे चलती है। बजट क्या, हम जब यंग थे तब हम बजट भी पढ़ते थे। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन पढ़ते थे कि देश का बजट क्या है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, किसमें उपयोग करता हुआ जाता है। अब आप अभी यंग लोगों को पूछिए कि सरकार कैसे चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कैसे चलता है, बजट कैसे बनता है, डिफेंस डिपार्टमेंट कैसे चलता है, वो तो सिखाना है लोगों को। जी सर। अब आप 18 साल को नहीं सिखा कौन सकते। सिखाएगा सर? सिखाने के बजाय तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की यूथ विंग्स है, they catch them early at 13 or 14, make them members, and they are taught how to break the benches, how to घेराव vice chancellor, how to insult professors in Sad, the class. very sad, very sad, This is what is very sad. happening. No, very sad. Okay, for example, हम किसी से बात कर रहे थे about training. So they want training classes, this, that. I said, look, आप 2 किताबें पढ़िए अगर आप कांग्रेसमैन है तो। एक पढ़िए डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पंडित नेहरू। Yes. पढ़िए, समझिए, सोचिए, डिस्कस करिए। और दूसरी किताब है गांधी जी की बायोग्राफी एंड हिंद स्वराज। आप इतना पढ़िए, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। अभी हम एक किताब लिखते हैं दूसरी, हमारी ये किताब बाहर आ रही है 29 मार्च को। उसका टाइटल है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमने सोचा कि इस वक्त इलेक्शन के पहले एक छोटी सी किताब लिखी जाए जिससे लोगों को पता चले कि डेमोक्रेसी क्या चीज है। It will be very good. It will provide material for discussion also. लेकिन पढ़ते नहीं है ना लोग। ओके, और दूसरी किताब हम लिख रहे हैं वो अभी थोड़ा बहुत सुन तो लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसको डीप समझना है। पढ़ने की और बात दूसरी आप किताब जोड़िए। है राजीव गांधी अनफिनिश्ड एजेंडा। तो हमारे घर में 5 बड़े बड़े वॉल्यूम हैं राजीव गांधी की स्पीचेस, उनके प्रेस इंटरैक्शंस। हर किताब करीबन 500 पेज की है, तो 2500 पेजेस ये 5 किताबों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आवाज भरी है, उनके विजडम, उनके इंटरैक्शंस। इट इज अमेजिंग टू रीड दैट। मैंने पहले तो पढ़ी थी, लेकिन मैंने फिर से पढ़नी शुरू की। अगर आप वो स्पीच और वो 5 किताबें पढ़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि देश क्या है
क्या होना चाहिए. You don't have to agree with everything. समझिए. You may disagree with few things, but 70 to 80%, and for someone like me, it is almost 100%. You will find a vision of a nation. You will find in their concern for poor, democracy, justice, farmers, youth, women, employment, economy, business. अरे ये सब चीज तो 18 साल के लोगों को समझनी चाहिए. अब आप इतना नहीं समझ सकते तो आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे. सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि लोगों को समझना है, पढ़ना है, सीखना है. हमारे वहां यंग लोग समर में किताब नहीं पढ़ते. हमारे बच्चे दो जब छोटे थे तो हर समर में 20-20, 25-25 किताबें पढ़ेंगे. नॉवेल, कोई जनरल इंटरेस्ट, क्योंकि स्कूल उनको कहेगी कि आप ये 25 किताब पढ़िए ये समर में. तो बच्चे हमेशा घर में बैठ के दोपहर को 4-5 घंटा किताब पढ़ेंगे, फिर खेलेंगे भी, थोड़ा बहुत टीवी भी देखेंगे, लेकिन हर रोज 5-6 घंटा किताब पढ़ना ये उम्र में एक आदत होनी चाहिए. अब समर में बच्चे बाहर धूप में घूमते हैं, उसके बदल आप बताइए कि घर में बैठ के किताब पढ़िए. वो तो पेरेंट्स की भी जवाबदारी है, टीचर की भी जवाबदारी है. अगर आप अच्छी तरह से लिखना पढ़ना नहीं जानते तो उसका नुकसान आपको ही होगा. सो लोगों को समझना है कि उनके भविष्य के लिए क्या चीज जरूरत है. सही है सर. सर आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम. Again, I am going back to the same stream which we were discussing on AI. Midjourney, OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट सहित एआई इमेज मेकर्स ऑफर करने वाली कुछ कंपनियों का कहना है कि इनकी नीतियों और काउंटर चेकिंग उपयोगकर्ताओं को इस तरह की बनावटी और भ्रामक इमेज उत्पन्न करने से रोकेगी. हालांकि आज तो ऐसा नहीं होता है. क्या ऐसी नीतियां लागू हो सकती है या वो सफल होगी अगर करना चाहे? देखिए, लाइक वी सेट अप a group to work on misuse of nuclear technology. And that activity started with Einstein, right after nuclear reaction was proven or bomb was used. Recently I had my daughter's father-in-law visiting from South Africa. He spent 2 days with me. He is a PhD from University of Illinois. And I took him to a place where first nuclear reaction was invented. It is in Chicago. And on that piece of land, there is a big skull, metal skull created. And I told him about this and he said, let's go. So he and I drove there. And in that location at University of Chicago, nuclear reaction got started. That was the invention that opened the whole nuclear energy era. But at the same time, a lot of scientists came together to warn the world that we must create laws, conditions, so that we don't misuse it. Up AI has happened too fast
and in a private sector. The nuclear reaction happened basically under government control, research and all that. So there was a little bit of, control before it gets out of hand. AI is getting out of hand without any control. So earlier we set up international body to really come up with laws and rules and regulations on how to use AI, where to use AI, how to control AI. We are learning more and more about the use of AI in warfare. Today, when we send a bomb, we don't know how to target it properly. AI on board machine will target precisely where bomb will be dropped. AI will automate a lot of defense and killing machines. But more important is, how do we make sure that we control AI? And that will require global rules and regulations, roles and responsibilities, obligations. And I think very soon people are going to realize that and come to some consensus. Today, there is a lot of conversation on it, but there is very little activity globally. Okay. Chinese do their own thing, Russians are doing their own thing, Americans are doing own thing, and India is doing our own in the way. But what are the real ethical angles to AI? How do we make sure that AI is used in the larger interests of humanity? A lot of discussion is going on, but unfortunately, most of the conversation is still about profit, power, positions, control, and speed. And these are all wrong parameters at this time. It should be peace, should be Sir, last prosperity. 3 minutes. Sir, last 3 minutes that we have, I'm sorry to interrupt you. I would never have No, wished thank you. that. Thank you. Uh, uh, Sir, ultimately, where this AI will take the world, whether it will be controlled or whether it will finish the world. I have great faith in humanity. I think at the right time we will all rise because we don't want to destroy human civilization. Nobody benefits from it. Okay. So we will all rise and manage this crisis, this challenge, so that AI is used to really empower human beings, to improve our living standard, to facilitate our comfort, and to give us free time so that we have opportunity to explore other things and not spend 10 hours a day to put food on the table. Today, major part of the humanity works to put food on the table. AI will Sir, who will free take the many of lead? us. Who will take the lead, sir? Technology will take the lead. And then a group of people will rise. A group of people from all over the world will rise. We will need some kind of global governance. I am working with several organizations globally right now on, global governance, global constitution. Um, there are three groups.
One group is about 30, 40 of us. We discuss regularly every month the issues of global concern. There is another group that is focused on global governance. And there is a third group that is focused on global constitution. So that work has already started. But it's a very small group right now. And I'm in all three groups. Rekindles the hope, sir. Yeah, so somebody has to do it, and not that we will all succeed, but you have to keep at it. Okay. Thank you, sir. It was आज का जो आपके साथ का चर्चा था, Thank you. शुरू हुआ सोशल मीडिया से, YII, voting age, then the great EVM, or ultimately it was a thrill to listen the global constitution or global governance will become a reality. It has to at some point in some form. Sir. Thank you. Thank you so much, sir. It was a great pleasure. Thank you for the opportunity. Have a nice day, sir, and thank you so much. You too. Thank you. Thanks. Thank you. Good. Barabar?